ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। देखोगे यहाँ पे लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विथ योर सेव बी ICTR बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन टाइप्स ऑफ इश्यूज हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन वी हैड डिस्कस्ड योर रेगुलेशन नंबर 5 अलॉन्ग विद योर रेगुलेशन नंबर 6। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 5 क्या बात करता था बच्चों? तो सर रेगुलेशन नंबर 5 बात करता था डिस्क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी कंपनीज एलिजिबल नहीं है, ठीक है, टू मेक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। Then regulation number 6 eligibility, companies which are eligible to make IPO, companies which are eligible to make IPO, वो आपको गिवन था रेगुलेशन नंबर 6 में। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन दिस क्लास वी आर स्टार्टिंग अ सेशन विथ जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशंस अब देखोगे जनरल कंडीशंस में यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हो पहले वो समझ लो। अपने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पढ़ा, सर हमने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस किया अंडर रेगुलेशन नंबर 6, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस किया सर अंडर रेगुलेशन नंबर 6। यहाँ पे ये जनरल कंडीशन जो पढ़ रहे वाले हो आप, दीज जनरल कंडीशंस आर इन एडिशन टू, ठीक है, दीज जनरल कंडीशंस आर इन addition to the eligibility requirements. These general conditions are in addition to the eligibility requirements. इसका मतलब it means company any company in order to make IPO, any company in order to make IPO, first they have to comply with the eligibility requirement. They have to be eligible, है ना। eligibility requirements under regulation number 6, eligibility requirements under regulation number 6, and after meeting eligibility requirements they have to comply, after meeting eligibility requirements they have to comply with general conditions. जनरल कंडीशंस in order to make initial public offerings, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर, तो ध्यान देना यहाँ पे जनरल कंडीशंस में सबसे पहले, जनरल कंडीशंस में सबसे पहले द इशूअर, an issuer making an IPO shall ensure, an issuer making IPO shall ensure that it has made an application to one or more stock exchanges to seek and in principle approval for listing of its specified securities on such stock exchange and has chosen one of them as the designated stock exchanges. यहाँ बोला गया कि in respect of the shares for which IPO is being made, ठीक है, उन शेयर्स को लिस्ट कराने के लिए ईश्वर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? in order to get the shares listed, ईश्वर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू मेक एन एप्लीकेशन ऑन या एप्लीकेशन टू, दे हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू एनी वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर कंपनी के पास ना ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल है। आइदर they can go for listing on single stock exchange or they can go for multiple listing, ठीक है। अभी कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में? तो देयर आर 7 स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, देयर आर 7 स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ऑप्शन है आपके पास, आइदर यू कैन गेट द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द सिंगल स्टॉक एक्सचेंज, और यू कैन गो फॉर, or being an issuer you can go for multiple listing. In case company has gone for multiple listing, then company has to choose one of the stock exchanges as designated stock exchanges. Company has to choose one of the stock exchanges as their designated stock
exchanges. ठीक है सर. एंड डेसिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज वो स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है which have nationwide terminals. Stock exchanges having nationwide terminals. ठीक है. Is it clear? हाँ सर. तो पहला general condition in respect of these shares being issued or being offered by a company in an IPO, in respect of those shares, company is required to make an application to one or more stock exchanges for getting those shares listed. For getting those shares listed, and in case of multiple listing, company has to choose one of these stock exchanges as the designated stock exchange. और designated stock exchange के साथ क्या होना चाहिए? It must have nationwide terminals. ठीक है सर. Now moving on to next general condition. देखोगे यहाँ पे issuer has entered into an agreement with a depository. तो इंडिया में भी कितने डिपॉजिटरीज है? 2 डिपॉजिटरीज है, NSDL as well as CDSL. ठीक है. तो कंपनी ने एग्रीमेंट किया हो किन के साथ? डिपॉजिटरीज के साथ, फॉर द पर्पस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग दी शेयर्स, फॉर द पर्पस ऑफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंपनी मस्ट हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद वन ऑफ द डिपॉजिटरीज फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग दी शेयर्स, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग दी शेयर्स in demat form. Company must have entered into an agreement with the depository for the purpose of converting these shares into the demat form or in dematerialized form. Clear है बेटा? Second condition. हाँ जी sir. Now moving on to the next condition, that is all its specified securities held by the promoters are in dematerialized form prior to the filing of ऑफर डॉक्यूमेंट. बोला कि प्रमोटर्स के पास जितने भी शेयर्स हैं, जो भी प्रमोटर्स होल्डिंग है, प्रमोटर्स होल्डिंग ऑफ कंपनी मस्ट बी इन डीमैट फॉर्म. ये नेक्स्ट रिक्वायरमेंट. उसके आगे ऑल इट्स एग्जिस्टिंग partly paid up shares must have been made either fully paid up or have been forfeited. ठीक है. तो existing shares needs to be fully paid up. ठीक है. existing shares partly paid up नहीं हो सकता है. अगर partly paid up है तो call करो money, make it fully paid up, and in case payment receive नहीं होता है call पे तो forfeit these shares. Is it clear? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. पॉइंट नंबर ए बी सी एज वेल एज पॉइंट नंबर डी में. नाउ अब देखोगे पॉइंट नंबर डी. पॉइंट नंबर डी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. देखना यहाँ पे क्या बोला गया. यहाँ पे issuer has made firm arrangement of finance through verifiable means. मतलब issuer ने arrangement of finance किया हो through verified means towards 75% of the stated means of finance, for a specified project proposed to be funded from the issue proceeds, excluding the amount to be raised through the proposed public issue or through the existing identifiable internal accruals. देखो एक बार पढ़ने से ना ये पॉइंट नहीं आने वाला है. एक बार फिर से इसको रीड करो मेरे साथ. क्या बोला गया? इशूअर हैज मेड फर्म अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मींस. कितना अरेंजमेंट? टुवर्ड्स 75% ऑफ द स्टेटेड मींस ऑफ द फाइनेंस फॉर ए स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट व्हिच इज प्रपोज्ड टू बी फंडेड फ्रॉम द इशू प्रोसीड्स. एक्सक्लूडिंग, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या एक्सक्लूड करना है? excluding the amount to be raised through the proposed public issue or through existing identifiable internal accruals. ध्यान देना. फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो कि यार कंपनी ना एक 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट को प्लान कर रहा है. ठीक है. कंपनी एक 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट को प्लान कर रहा है एंड फॉर फंडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंपनी इज मेकिंग public issue of securities.
फॉर फंडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंपनी इज मेकिंग पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ये क्लियर है? हाँ सर। अब 2000 करोड़ में से मान लो कि यार 1000 करोड़, 2000 करोड़ में से 1000 करोड़ कंपनी ला रहा है पब्लिक इशू से, ठीक है। आउट ऑफ 2000 करोड़ 1000 करोड़ कंपनी कहां से ला रहा है? फ्रॉम दी पब्लिक इशू। लेफ्ट ओवर बैलेंस कितना? तो लेफ्ट ओवर बैलेंस है बेटा 1000 करोड़। एंड मान लो आउट ऑफ दिस 1000 करोड़ 200 का इंटरनल अक्रूवल्स है। इंटरनल अक्रूवल्स मतलब मान लो कि ये पैसा कलेक्ट करना है फ्रॉम दी डेटर्स है या बीआर है, ये श्योर शॉट है कि ये पैसा कंपनी के पास आने वाला है। इंटरनल अक्रूवल्स 200 करोड़ का। बात समझ में आ रही है क्या? चलो फिर से, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 2000 करोड़। आउट ऑफ 2000 करोड़ 1000 करोड़ का कंपनी पब्लिक इशू लेकर के आ रहा है, तो 1000 करोड़ का अरेंजमेंट हो गया। बचा कितना? 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ में से 200 करोड़ कंपनी को मिलने वाले हैं फ्रॉम द इंटरनल अक्रूवल्स। अभी बचा कितना बेटा? 800 करोड़। तो बोला गया दैट कंपनी हैज टू गिव श्योरिटी, कंपनी हैज टू गिव श्योरिटी दैट दे आर गोइंग टू रिसीव, कंपनी हैज टू गिव श्योरिटी दैट दे आर गोइंग टू रिसीव दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ 800। मान लो कि यार कंपनी ने ना बैंक लोन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, मान लो कंपनी ने बैंक लोन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी को कंफर्मेशन देना पड़ेगा, कंपनी को कंफर्मेशन देना पड़ेगा। कंफर्मेशन कैसे हो सकता है? तो सैंक्शनिंग ऑर्डर ला करके दो, बैंक का सैंक्शनिंग ऑर्डर ला के दो। इंश्योर करो कि तुम्हारे लेवल पे जो पैसा आने वाला था वो आएगा, ठीक है। तुम्हारे लेवल पे जो पैसा आने वाला था वो जरूर आएगा, क्योंकि मान लो कि यार तुमने पब्लिक से 1000 करोड़ रेज भी कर लिया, 200 करोड़ तुमको इंटरनल अक्रूवल से भी आ गया, तो जिस प्रोजेक्ट के लिए तुमको 2000 करोड़ चाहिए था, क्या वो प्रोजेक्ट को तुम 1200 करोड़ में एग्जीक्यूट कर पाओगे? आंसर इज नो, आंसर इज नो। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो बोला कि जो पैसा तुम अपने लेवल पे कलेक्ट करने वाले थे, जो पैसा तुम अपने लेवल पे अरेंज करने वाले थे, अदर देन दी पब्लिक इशू, तुम्हें श्योरिटी देना पड़ेगा, तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा, तुम्हें फर्म कमिटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, दैट यू आर गोइंग टू रिसीव दैट सम ऑफ मनी, ठीक है बेटा। तो मान लो कि यहाँ पे 800 करोड़ कंपनी को बैंक ने बोला कि दैट दे विल पे, दैट दे विल ग्रांट अ लोन ऑफ 800 करोड़, तो बैंक का सैंक्शनिंग ऑर्डर, सैंक्शनिंग लेटर लेकर के आना पड़ेगा बिफोर मेकिंग इशू ऑफ सिक्योरिटीज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्लीज ये एग्जाम्पल आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस as mentioned in the object of the issue in the draft of a document. The amount of the general corporate purposes as mentioned in the draft of a document and the offer document shall not exceed 25% of the amount, 25% of the amount raised by the issuer. अब इसको पहले ध्यान देना, पहले ना हमको यहाँ पे मीनिंग चेक करना पड़ेगा कि यार जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का मतलब क्या, then only we can interpret this particular point. General corporate purpose, we need to understand the concept of general corporate purpose. तो ध्यान दोगे यहाँ पे, देखो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, इट इंक्लूड सच आइडेंटिफाइड पर्पस, इट इंक्लूड ऑल सच आइडेंटिफाइड पर्पस जिसके लिए कोई भी अमाउंट एलोकेट नहीं किया गया है, एंड इट इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, इट इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट। तो बोला जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए मैक्सिमम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट दैट कुड बी स्पेंट इज 25% ऑफ दी 25% ऑफ द अमाउंट, 25% ऑफ द अमाउंट रेज्ड बाय द इशूअर, 25% ऑफ द अमाउंट रेज्ड बाय द इशूअर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी? हाँ सर। तो बच्चों अभी तक क्या पढ़े तुम पढ़े
डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एज वेल एज जनरल कंडीशन. जनरल कंडीशंस में एक एक पॉइंट क्लियर है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एडिशनल कंडीशंस. जनरल कंडीशंस के बाद एडिशनल कंडीशंस which needs to be complied only in case of offer for sale. मतलब ऑफर फॉर सेल है तो ये कंडीशन है, और ऑफर फॉर सेल नहीं तो ये कंडीशंस भी नहीं. ठीक है. इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल, इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल, these additional conditions needs to be complied with. तो देखोगे यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी में सबसे पहले इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप. जो शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप. इन केस शेयर्स which are being offered for sale, shares which are being offered for sale must be fully paid up shares. ये पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन, shares shall be held by the sellers for a period of at least 1 year prior to the date of filing of draft offer document. ठीक है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, only such shares, ठीक है, only such shares can be offered, only such shares can be offered by the existing members, which are being held for a period of at least 1 year, prior to the date of filing draft offer document. तो पहले दो कंडीशन. पहला कंडीशन क्या था बच्चों? शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप, एंड सेकंड कंडीशन, those shares must be held by the existing members for a period of at least 1 year. क्लियर है? हाँ जी सर. नेक्स्ट वन, the holding period of such convertible securities including depository receipts as well as that of resultant equity shares together shall be considered for the purpose of calculation of 1 year. अब यहां बोला क्या, देखो ये कंडीशन आपको एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ही ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा. बोला अगर कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, बात समझ में आ रहा है क्या? तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में क्या होता है? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के केस में आपको वो सिक्योरिटीज के बदले क्या मिलता है बच्चों? शेयर्स मिलते हैं. ठीक है. सिक्योरिटीज के बदले क्या मिलेगा? शेयर्स मिलेगा. यहां बोला क्या, कहां लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं मैं. इतना नोट डाउन कर लेना, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के बदले क्या मिलता है? शेयर्स. यहां बोला गया लेट्स से कंपनी, तो देखना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कंपनी ने ना कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया हुआ है. एंड मान लो दीज बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 months. तो इन दीज केसेस क्या होने वाला है? ये जो पीरियड ऑफ 6 months है ना, पीरियड ऑफ कन्वर्जन, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस पीरियड ऑफ कन्वर्जन shall also be considered while calculating the time frame of 1 year. This period of conversion shall also be considered for calculating the time frame of 1 year. Along with this period of holding of shares, मान लो कि 6 महीने लग गए सर कन्वर्ट होने में, इसको इंक्लूड किया, एंड प्लस दो शेयर्स आर बीइंग हेल्ड फ्रॉम लास्ट 8 months, तो टोटल इट विल मेक 14 months. ठीक है, टोटल इट विल मेक 14 months which is more than 1 year. Thus these shares can also be offered for sale. Is it clear बच्चों?
ये क्लियर है? देखो यही बोला यहाँ पे, द होल्डिंग पीरियड ऑफ सच कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स एज वेल एज दैट ऑफ रिजल्टेंट इक्विटी शेयर्स टुगेदर shall be considered for the purpose of calculation of period of 1 year. So this provision shall equally be applicable. This provision shall equally be applicable in case of depository receipts. तो depository receipts के केसेस में भी जो पीरियड ऑफ कन्वर्जन है, जो होल्डिंग पीरियड है, ठीक है, जो मेच्योरिटी पीरियड है, that maturity period shall also be considered while calculating time frame of 1 year. Is it clear? हाँ sir. Then further such holding of 1 year shall be required to be complied. कब चेक करना है? At the time of filing of draft offer document. आपको 1 year का होल्डिंग टाइम पीरियड कब चेक करना है? कब चेक करना है? At the time of filing the draft offer document. आपको चेक करना है if at the time of filing draft offer document, if at the time of filing draft offer document shares were being held for more than 1 year. If at the time of filing draft of a document shares were being held for more than 1 year, then in that case all such shares will be eligible. In that case all such shares will be eligible for being offered under offer for sale. Is it clear? हाँ जी सर. Next ये सब हो गया आपको. आगे ये जो 1 year का जो रिक्वायरमेंट था ना, 1 ईयर होल्डिंग पीरियड का जो रिक्वायरमेंट था, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस. लिखा है द रिक्वायरमेंट ऑफ द होल्डिंग इक्विटी शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. द रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग इक्विटी शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल मेड बाय अ गवर्नमेंट कंपनी और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और कॉर्पोरेशन और एनी स्पेशल पर्पज व्हीकल सेट अप एंड कंट्रोल बाय वन और मोर ऑफ देम which is engaged in the infrastructural sectors. ठीक है, तो यहाँ पे होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये जो रिस्ट्रिक्शन था या जो रिक्वायरमेंट था फॉर होल्डिंग शेयर्स फॉर मोर देन 1 ईयर, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफर फॉर सेल इज मेड बाय एनी गवर्नमेंट कंपनी और एनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. ठीक है सर? हाँ जी. और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो गया, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल और वन और मोर ऑफ देम विच इज एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल और एनी एंटिटी विच इज एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर. ठीक है, यहाँ पे 1 ईयर का टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं रहेगा फॉर ऑफरिंग दी शेयर्स फॉर offer for sale. Then it will not be applicable in case of shares which are being acquired. ठीक है, shares which were being acquired in the scheme of any merger or amalgamation. सीधा लिख लेना, shares acquired in the scheme of any merger or amalgamation. Is it clear? यहाँ से पढ़ना तुम लोग. ये वाला पार्ट जो है ना सेक्शन 391 से 94 वाला, ये इसको कट कर देना, ये अभी नहीं है एप्लीकेबल. ठीक है, अब तो बस ना लिखना एनी शेयर्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तुम्हारे को आसान हो जाएगा. एनी शेयर्स acquired, ठीक है, any shares acquired under any scheme of merger or any shares acquired under any scheme of merger or amalgamation. ठीक है, तो in this particular case also holding period of 1 year is not required to be complied with. Or if the equity shares offered for sale were issued under a bonus issue, shares issued under bonus issue, ठीक है, अगर कोई शेयर्स तुमको अक्वायर किया है, तुमने अक्वायर किया है अंडर बोनस इशू, तो दैट शेयर, दो शेयर्स आर आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year इन ऑर्डर टू मेक इट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑफर फॉर सेल. ठीक है, लेकिन कुछ और कंडीशंस यहाँ पे देखना. इन केस इफ द इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड फॉर सेल were issued under a bonus issue on the security held for a period of 1 year prior to the filing of the draft of a document with the board and further subject to the following conditions. जो बोनस शेयर्स तुमको मिला है ना, बोनस शेयर्स
बोनस शेयर्स तुमको कौन से शेयर्स के रिस्पेक्ट में मिला है? बोनस शेयर्स मिला है, लिख लेना, इन रिस्पेक्ट ऑफ दो शेयर्स। बोनस शेयर्स मिला है तुमको इन रिस्पेक्ट ऑफ दो शेयर्स विच आर already being held, which are already being held for 1 year or more। मतलब being an investor you were already holding equities, being an investor you were already holding equity shares, है ना, और इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन 1 ईयर, और उन शेयर्स के रिस्पेक्ट में, उन शेयर्स के रिस्पेक्ट में आपको बोनस शेयर्स अलॉट हुआ है। तो बोनस शेयर्स के ऊपर भी 1 ईयर का रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, कंडीशंस क्या था? सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बीइंग इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, बोनस शेयर्स हैव बीन इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड, एंड सच इक्विटी शेयर्स नॉट बीइंग इशूड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ द इशूअर। तो देखो, अगर मैं इसको ना इन शॉर्ट बात करूँ ना, तो बोला गया कि 1 ईयर का टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर शेयर्स अक्वायर्ड अंडर बोनस इशू, फॉर शेयर्स अक्वायर्ड अंडर बोनस इशू। बोनस इशू कहां से किया गया? बोनस इशू किया गया आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स, बोनस इशू किया गया आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेना बच्चों। एंड बोनस शेयर्स तुमको किन के रिस्पेक्ट में मिला? कौन से शेयर्स के रिस्पेक्ट में मिला? तो बोनस शेयर्स तुमको मिला इन रिस्पेक्ट ऑफ दो शेयर्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ दो शेयर्स बीइंग हेल्ड, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ शेयर्स, दो शेयर्स बीइंग हेल्ड बाय द कंपनी, बीइंग हेल्ड बाय द कंपनी फॉर मोर देन 1 year। bonus shares being held by the company, bonus shares being held by the company for more than 1 year। is it clear? clear sir? हाँ जी। now moving on to the next aspect, that is eligibility criteria for further public offerings, eligibility criteria for further public offering। देखो यहाँ पे ये जो है ना एक्सप्लेनेशन हो गया पार्टनरशिप फर्म, प्रोविजंस रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फर्म्स, और ये जो पर्टिकुलर क्लास पैराग्राफ है ना, इसको तुम लिखना पेंडिंग, पेंडिंग फॉर द टाइम बिंग। मैं इसको लेटर ऑन कवर करूंगा, पेंडिंग फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। मैं इसको लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में आई एम गोइंग टू कवर इट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज आईपीओ से रिलेटेड प्रोविजंस बच्चों अपन ने पढ़ा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एफपीओ, ठीक है। वी विल बी डिस्कसिंग द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एफपीओ। अब ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया आपको, सॉरी फॉर द टाइम बीइंग, ध्यान दो यहाँ पे। इफ all the above eligibility conditions are satisfied, ध्यान रखना, eligibility conditions as specified under regulation number 6, then general conditions, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 6 का एलिजिबिलिटी प्लस जनरल कंडीशंस। तो कंपनी क्या कर सकता है? कंपनी कैन मेक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ठीक है। कंपनी कैन मेक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स एंड इन केस if company do not fulfills, if company do not fulfills the above stipulated conditions, तो उन केसेस में in order to make issue of securities, in order to make issue of securities, कंपनीज को, ध्यान देना, एक नया वर्ड आएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने, in order to make issue of securities, company can make
an initial public offering through book building process. ठीक है, company can make initial public offerings through book building process and further they can undertake to allot 75% of the net offer to the public, to the QIBs and to refund the application money if it fails to do so. बोला अगर above stipulated conditions satisfy नहीं हुए then company can make, in order to issue the securities, कंपनी को क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा सर बुक बिल्डिंग प्रोसेस. सर ये क्या होता है बताएंगे बेटा? कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा बुक बिल्डिंग प्रोसेस and under book building process at least 75% of shares must be issued to the, must be allocated to the QIBs. अब इसका क्या implications पढ़ने वाला मैं डिस्कस करता हूँ. पहले मैं ये कंसेप्ट को ले लेता हूँ बुक बिल्डिंग को. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर, ध्यान देना यहाँ पे. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट, जिंदगी बदलने वाली है सर. ओके देखो, तो पहले कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं हम लोग आपके लिए. दिस वन इज ओके. हाँ सर, ध्यान देना यहाँ पे. देखो, at the time of making issue of securities, ध्यान देना बच्चों, at the time of making issue of securities, ठीक है, at the time of making issue of securities, in order to fix the price of securities, मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो बोल रहा हूं. मैंने बोला at the time of making issue of securities, the time of making issue of securities, in order to fix the prices of securities, in order to fix the prices of securities, company have two options. कंपनी हैव टू ऑप्शंस. ठीक है, इशू के टाइम पे इन ऑर्डर टू फिक्स द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज कंपनी हैव टू ऑप्शंस. पहला है आइदर कंपनी कैन गो फॉर फिक्स प्राइस मेथड, आइदर कंपनी कैन गो फॉर फिक्स प्राइस मेथड. ठीक है, अब देखो फिक्स प्राइस मेथड में क्या होता है, द इशूअर कंपनी shall fix the price of securities in consultation with their lead merchant banker. ठीक है, in case of fixed price method, the issuer shall fix the price of the securities in consultation with the lead merchant banker. ये है फिक्स प्राइस मेथड. लेकिन तुमको मालूम है ये मेथड का ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. ये मेथड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. क्या ड्रॉबैक है सर? तो मैं तुमको ना एक एग्जांपल देता हूं. मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड. ठीक है, एक कंपनी ए लिमिटेड. अब ये कंपनी ना आईपीओ लेकर के आ रही है. तो आईपीओ लाने के टाइम this company is going into the public for the very first time. This company is going into the public for the very first time, है ना? हाँ सर. And as the company is going into the public for the very first time, तो बहुत ज्यादा possibility है that investors may not be aware about the company, may not be aware about the perspective of company. They may not risk their funds. They may not risk their funds into the company. बात समझ में आ रहा है? कंपनी के बारे में सुना नहीं, कल तक जैसी कंपनी के बारे में सुना नहीं, आज उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे क्या डायरेक्टली जाकर के? वो भी एक प्राइस पे, जो कंपनी ने प्राइस रखा.
मान लो कि यार कंपनी ने शेयर का प्राइस रखा 100 रुपया, कंपनी के हिसाब से लगता है कि उनके शेयर का प्राइस 100 रुपया तो होना चाहिए, ऐसा कंपनी को लगता है यार, ऐसा कंपनी को लगता है, बट जरूरी नहीं कि इन्वेस्टर्स को भी ऐसा ही लगे। बात समझ में आ रहा है क्या? जरूरी नहीं दैट इन्वेस्टर्स में ऑल्सो फील इन द सेम मैनर। मान लो कि यार एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार ये कंपनी के जो शेयर है ना, लुकिंग इनटू द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी, लुकिंग इनटू द पास्ट परफॉर्मेंसेज एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का शेयर प्राइस 75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है। दूसरे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार इसका शेयर प्राइस 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स भी है जिसको लगता है कि यार इसका प्राइस तो कम से कम 110 भी हो सकता है। अब समझो कि यार जो 75 देने के लिए रेडी है, क्या वो कभी 100 रुपए देगा? नहीं देगा सर। तो 100 रुपए नहीं देगा, इट मींस कि ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को तो कंपनी अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। सेम विद दिस ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, जिसको लगता है कि 90 बराबर है, जिसको लगता है कि 90 बराबर रेट है, लेकिन कंपनी कितना चार्ज करी? 100। वेदर कंपनी वुड बी एबल टू अट्रैक्ट दीज इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स देम? आंसर इज नो, बिग नो। बात समझ में आ रही क्या? टुडेज मार्केट ना, इन टुडेज मार्केट एवरीथिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट जो इस प्राइस में चाहिए ना, उसी वही प्रोडक्ट उस प्राइस में आपको ऑफर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दी कंज्यूमर्स या इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दी इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स यू। अब देखो ना, फिक्स प्राइस मेथड के लिए गया कंपनी को लगा कि उसके शेयर का वर्थ 100 रुपीज है, बट ऐसा इन्वेस्टर्स को भी लगना चाहिए ना। अब मान लो कि यार जो इन्वेस्टर 110 देने के लिए रेडी है, तो यहां पे भी कंपनी का लॉस है कि यार जिससे 110 रुपए ले सकते थे उससे कितना लिया है? 100 रुपीज। जिससे 110 मिल सकता था उससे कितना मिला? 100 रुपीज। तो नॉर्मली नाउअडेज कंपनीज फिक्स प्राइस मेथड के लिए नहीं जाता है, ठीक है, ड्यू टू दी लिमिटेशंस involved, due to the limitations involved in the fixed price method. Due to the limitations involved in the fixed price method, companies fixed price method के लिए नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, तो क्या दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है? तो बच्चों दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कंपनी के पास, कंपनी कैन फिक्स द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू book building method. Company can fix the price of securities through book building method. अब देखो, ये जो बुक बिल्डिंग मेथड है ना, इसको अपन प्राइस बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्राइस बिल्डिंग मेथड। सर प्राइस बिल्डिंग मेथड, हाँ बच्चों प्राइस बिल्डिंग मेथड। सर क्या मतलब है इसका? मतलब दैट अंडर दिस मेथड, under this method investors will have a say, investors will have a say in deciding or in fixing the price of the securities. Investors will have a say in fixing the price of the securities. किसमें? बुक बिल्डिंग मेथड में। बात समझ में आ रहा है क्या? इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड इन्वेस्टर्स विल हैव अ से इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। जबकि फिक्स प्राइस मेथड में वेदर कंसीडरेशन, वेदर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स ग्रुप इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, आंसर इज नो। वेदर इन्वेस्टर्स हैव अ से, क्या इन्वेस्टर्स अपना ओपिनियन रख सकता है फिक्स प्राइस मेथड में? नो सर। अब मान लो कि यार मैं ना ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, आईसीडीआर पढ़ा रहा हूँ, और मैंने बोला कि यार आईसीडीआर पढ़ाने के लिए ना आई विल बी चार्जिंग एटलीस्ट 15,000 पर स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट सुन के बेहोश हो गया, ठीक है, कुछ स्टूडेंट तो सुनते ही बेहोश हो गया, बोले 15,000 रुपए नहीं सर, 15,000 रुपए तो नहीं जमता है। कुछ स्टूडेंट बोलता है कि नहीं नहीं सर 15,000 बहुत ज्यादा है, हम आपको 2,000 रुपए ही दे सकते हैं। जिस लेवल का आप पढ़ा रहे हो तो 2,000 रुपए काफी है सर, जितना आप पढ़ा रहे हो, जितना कंटेंट आप पढ़ा रहे हो 2,000 रुपए काफी है। तो जो स्टूडेंट 2,000 ही देने के लिए रेडी है, क्या मैं उससे 15,000 चार्ज कर पाऊंगा? आंसर इज नो। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर क्या जबरदस्त पढ़ाया है आपने,
15 के आप 30 मांगोगे ना तो 30 भी देने के लिए हम रेडी है। तो जो 30 देने वाला था क्या मैं उससे 15,000 लेता हूं तो इट विल बी अ लॉस, इट विल बी अ लॉस, यस। तो इट विल बी मोर फेवरेबल फॉर एनी कंपनी, it will be more favorable for any company to consider the representations given by the or made by the investors group. Involve the investors group while fixing the price of your securities. Involve your investors group while fixing the price of the securities. बात समझ में आ रही है क्या? And involving such investors group while fixing the price of the securities, कोई अपन ने क्या नाम दिया बच्चों? को क्या नाम दिया? बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड में देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टर्स विल हैव अ से इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। बुक बिल्डिंग मेथड में देखो क्या होता है, अगर तुम लोगों ने सुना हो या पढ़ा हो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में, हाँ सर पढ़ा तो है, तो बच्चों रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यहीं पे काम आता है। इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग इशू, कंपनी इशूज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी डिस्क्लोज नहीं करता क्या? प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। आइदर दे डू नॉट डिस्क्लोज द प्राइस और क्वांटम ऑफ द सिक्योरिटीज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, कंपनी क्या करेगा? कंपनी विल ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, कंपनी विल डिसाइड द प्राइस। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ इशूइंग प्राइस, कंपनी विल इशू अ प्राइस बैंड। इंस्टेड ऑफ डिस्क्लोजिंग द प्राइस, कंपनी विल इशू अ प्राइस बैंड। ठीक है, प्राइस बैंड समझ लो, लेट्स से 100 से 115। इसका मतलब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इन्वेस्टर्स से टू पे एनीथिंग बिटवीन 100 to 115। यार कम से कम 100 रुपये चाहिए, एंड 115 तक आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो प्राइस बैंड होगा ना बच्चों, प्राइस बैंड के बीच में डिफरेंस हो सकता है ऑफ मैक्सिमम 20% तक का। तो सर मैक्सिमम प्राइस बैंड 100 अगर बेस प्राइस है तो कैप प्राइस, इसको अपन बोलते हैं बच्चों बेस प्राइस। जो लोअर लिमिट है उसको क्या बोल रहे हैं? बेस प्राइस। और जो हायर लिमिट है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? कैप प्राइस। तो ये जो डिफरेंस रहने वाला है बिटवीन बेस प्राइस एंड कैप प्राइस, it can go up to 20%। तो 100 से 120 मैक्सिमम ये प्राइस बैंड हो सकता है। दिस कैन बी द प्राइस बैंड। तो कंपनी ने प्राइस बैंड इशू किया, एंड प्राइस बैंड इशू करके कंपनी शैल इनवाइट बिडिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। कंपनी शैल इनवाइट बिडिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स विल बिड कि किसको कितने प्राइस में वो शेयर्स चाहिए। ठीक है, आपको एक लिमिट दे दिया गया, लेट्स से यहाँ पे लिमिट कितना है? 100 से 115। तो इन्वेस्टर्स विल बिड एनीथिंग बिटवीन 100 to 115। कंपनी शैल इनवाइट बिडिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग invited, company shall decide a cut ऑफ प्राइस। बिडिंग के बेसिस पे कंपनी डिसाइड करेगा क्या? कट ऑफ प्राइस। ये जो कट ऑफ प्राइस है ना बच्चों, ये कट ऑफ प्राइस ही कहलाता है इशू प्राइस। लिख लेना तुम ये सब, कंपनी शैल डिसाइड अ कट ऑफ प्राइस, जिसको अपन इशू प्राइस भी बोल रहे हैं। अब बिडिंग के दौरान दो टाइप का इन्वेस्टर, पहला इन्वेस्टर who bids anything at कट ऑफ प्राइस, जिसने कट ऑफ प्राइस पे बिड किया, और मोर देन कट ऑफ प्राइस। मान लो कि यार कट ऑफ प्राइस कंपनी निकल करके ला रहा है 109 रुपए, तो जिसने 109 या उसके ऊपर बिडिंग किया, मैं अभी न्यूमेरिकल आपको एक कराऊंगा, पूरा क्लियर कट आपको
समझ में आने वाला है। मान लो कि कट ऑफ प्राइस कितना रखा कंपनी ने 109, तो जिसने बिड किया 109 या उसके ऊपर वाले प्राइस पे 109, 110, 111, 112, है ना ऐसे, और इन्वेस्टर्स हु बिड्स एनीथिंग एट द कट ऑफ प्राइस और मोर देन द कट ऑफ प्राइस, और मोर देन द कट ऑफ प्राइस। और दूसरा इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर्स हु बिड्स बिलो द कट ऑफ प्राइस, तो जिसने कट ऑफ प्राइस से नीचे बिड किया, मान लो कट ऑफ प्राइस कितना आ रहा है बच्चों 109, तो 108, 107, 106, 105 एंड सो ऑन, इन इन्वेस्टर्स का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा जिन्होंने बिडिंग किया कट ऑफ प्राइस या उससे ऊपर। अब तुम समझो ना यार कि जिसने बिडिंग किया 109 पे और प्राइस भी 109 आया, तो 109 पे बिड किया और कट ऑफ प्राइस भी 109 है, इट मींस ही इज रेडी टू परचेज इट फॉर 109। हाँ सर। अब जिसने 110 पे बिड किया, अभी 110 रुपए देने के लिए रेडी है वो, तो अगर वो कोई पर्सन 110 रुपए देने के लिए रेडी है तो क्या 109 दे देगा? हाँ सर। इन द सेम मैनर अगर कोई 111 देने के लिए रेडी है तो क्या 109 दे देगा? हाँ सर। इन द सेम मैनर अगर कोई 112 देने के लिए रेडी है, क्या 109 दे देगा? हाँ सर। लेकिन जिसने बिडिंग 105 पे किया है, जिसने बिडिंग ही 105 पे किया है, क्या वो 109 रुपए देगा? नहीं सर। तो जिसने बिड किया एनीथिंग एट द बिलो द कट ऑफ प्राइस, इनका एप्लीकेशन, देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, देयर एप्लीकेशन मैं लिख देता हूं यहां पे, इन दिस केस एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। इज इट क्लियर? तो देखो बुक बिल्डिंग मेथड में क्या हो रहा था, बुक बिल्डिंग मेथड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, is also called as price discovery method. क्यों? Because price is discovered under this method, price is discovered on the basis of bids received from the investors group. Under this method, instead of issuing a fixed price, company will issue a price band. Company will issue a price band as disclosed in their red herring prospectus. कंपनी ने प्राइस बैंड इशू किया, हाँ सर। कंपनी ने प्राइस बैंड इशू किया, प्राइस बैंड इशू करके ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव बाय द कंपनी विल डिसाइड अ कट ऑफ प्राइस, और जिन भी इन्वेस्टर्स ने कट ऑफ प्राइस या उससे ऊपर बिडिंग किया है उनका एप्लीकेशन में बी एक्सेप्टेड, एंड जिन भी इन्वेस्टर्स ने कट ऑफ प्राइस या उससे नीचे बिडिंग किया है देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अब देखना, समझना यहाँ पे। अब मान लो कि यार कंपनी ने कट ऑफ प्राइस रखा था हमारे एग्जांपल में 100 से 115, तो सॉरी कट ऑफ प्राइस नहीं, प्राइस बैंड रखा था। ठीक है, ये प्राइस बैंड है, ध्यान से समझना बेटा, प्राइस बैंड इशूड। ठीक है, पहले समझो कि ये प्राइस बैंड वैलिड है क्या? हाँ सर वैलिड है। बेस प्राइस और कैप प्राइस के बीच में डिफरेंस कैन बी ऑफ 20%, इट कैन गो अप टू 20% मोर। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो देखो बिडिंग का पैटर्न कुछ इस तरीके से, 100 रुपीज पे करने वाले 2% इन्वेस्टर्स, 101 पे करने वाले 3%, 102 पे करने वाले 4%, 103 पे करने वाले 7%, 104 पे करने वाले 12%, 105 पे करने वाले 16%, 107 पे करने वाले 19%। ठीक है, देन 111 पे करने वाले 22%, देन 112 पे 8%। ऐसा कुछ पैटर्न ऑफ बिडिंग मिला है कंपनी को। तो कितना हो गया? 5, 9, 16, 28 और 44 और 63 एंड 65, 85, 93 हो गया, एंड 113 पे 4%, 114 पे 3%। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ बिडिंग। कंपनी को ये पैटर्न में बिडिंग मिला है। ठीक है, 104 कर देना इसको। अब मैंने बच्चों से पूछा कि बताओ व्हाट विल बी द कट ऑफ प्राइस। व्हाट विल बी द कट ऑफ प्राइस? तो सर
इतना हमको मालूम है कि कंपनी अगर पब्लिक इश्यू लेकर के आया है, कंपनी कैन मेक अलॉटमेंट ओनली व्हेन कंपनी रिसीव्स 90% सब्सक्रिप्शन। ये ध्यान में रखना पहले। कंपनी कैन मेक अलॉटमेंट ओनली व्हेन कंपनी रिसीव्स एटलीस्ट 90% ऑफ द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर एक और चीज मैं तुमको बता दूं, कट ऑफ प्राइस डिसाइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू फिक्स द कट ऑफ प्राइस, कंपनी क्या कंसिडर करता है? तो कंपनी कंसिडर करेगा कि यार प्राइस भी मैक्सिमम मिले, है ना, प्राइस भी मैक्सिमम मिले, एज वेल एज वो मैक्सिमम प्राइस पे, मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस पे कंपनी मस्ट रिसीव मैक्सिमम पॉसिबल सब्सक्रिप्शन। ठीक है सर, हाँ जी, प्राइस भी मैक्सिमम हो और वो प्राइस पे सब्सक्रिप्शन भी मैक्सिमम हो। अब देखोगे यहां पे कैलकुलेशन कैसे करोगे। मैं पहले प्राइस चेक करता हूं 100, तो 100 पे कितने लोग रेडी हैं? 2%। नहीं, ऐसा नहीं। अब तुम सोच के देखो कि यार जो 101 देने के लिए रेडी है, 102, 103, 104, 105, 107, 111, 112, 113, 114, जो 114 देने के लिए रेडी है बेटा वो 100 भी दे देगा। हाँ सर। जो 101 देने के लिए रेडी है वो 100 भी दे देगा। हाँ सर। जो 102 देने के लिए रेडी है वो 100 भी दे देगा। हाँ सर। तो अगर 100 पे मैं बात करूं ना, एट द प्राइस ऑफ 100 कंपनी इज गोइंग टू रिसीव 100% सब्सक्रिप्शन। कंपनी इज गोइंग टू रिसीव 100% ऑफ द सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों? हाँ सर। अब आ जाओगे 101 पे। 101 पे देखो कितना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 101 पे ना ये सब रेडी है, ये सभी लोग रेडी है, क्योंकि यार जो 101 से ज्यादा देने के लिए रेडी है ना वो 101 भी दे देगा, लेकिन जो 100 देने के लिए रेडी है वो 101 नहीं देगा। तो कंपनी का कितना परसेंट इन्वेस्टर्स लूज हो रहा है? 2%। तो मैं बोलता हूं यार 101 पे कंपनी इज गोइंग टू रिसीव 98% सब्सक्रिप्शन। कंपनी इज गोइंग टू रिसीव 98% सब्सक्रिप्शन। क्यों सर? तो इसको ऐड कर लेना तुम लोग और ऐसे कैलकुलेशन लेना, जो 102 देगा वो 101 भी दे देगा, जो 103 देने के लिए रेडी है वो 101 भी दे देगा, जो 112 देने के लिए रेडी है वो 101 भी दे देगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ सर। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट प्राइस चेक करता हूँ 102। तो 102 पे देखो मैं किन किन को लूज करने वाला हूँ, इसको लूज करने वाला हूँ, इसको लूज करने वाला हूँ। क्यों? बिकॉज वन हु इज रेडी टू पे 100 विल नॉट पे 102 और वन हु इज रेडी टू पे 101 विल नॉट पे 102। तो 102 पे आई विल बी गेटिंग 95% ऑफ द सब्सक्रिप्शन। बस में आने क्या? आई विल बी गेटिंग 95% ऑफ द सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अब मैं आता हूं 103 पे। 103 अगर मैं प्राइस रखता हूं तो किस किस को लूज करने वाला हूं मैं? इसको लूज कर दूंगा, क्योंकि 100 वाला 103 नहीं देगा, 101 वाला 103 नहीं देगा, 102 वाला 103 नहीं देगा। तो 4 + 3 7 और +2 9, तो 9% इन्वेस्टर्स या बिडर्स को मैं लूज कर दूंगा, एंड यहां पे आई कैन गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 91%। आई कैन गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 91%। अब मैं नेक्स्ट प्राइस पे आता हूं 104 पे। तो 104 पे मैं किन किन को लूज कर दिया? इन सबको लूज कर दिया। 11 + 3 14 16% इन्वेस्टर्स को मैं लूज कर दिया। अब 16% को अगर मैं लूज कर दिया तो मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन 104 पे मैक्सिमम कितना मिलेगा बच्चों? 86%। क्या 86% सब्सक्रिप्शन मिलने पे आई कैन मेक द अलॉटमेंट? क्या 86% सब्सक्रिप्शन मिलने पे आई कैन मेक द अलॉटमेंट? आंसर इज नो। मुझे अलॉटमेंट करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए था? 90% सब्सक्रिप्शन। तो मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस एंड एट विच मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन कैन बी रिसीव फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट, वो क्या रहने वाला बच्चों? 103। 103 अगर अपन ने प्राइस रखा तो 103 वो मैक्सिमम प्राइस भी है, और 103 पे वी विल ऑल्सो बी एबल टू गेट 90% ऑफ द सब्सक्राइबर्स। ठीक है, वी विल बी एबल टू गेट 90% ऑफ द सब्सक्राइबर्स। बात समझ में आ रहा है क्या? तो 103 विल बी दी कट ऑफ प्राइस। अब
ये केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस, जिन भी इन्वेस्टर्स ने 103 और मोर पे बिड किया, कट ऑफ प्राइस मेरा 103 है, 103 और मोर पे बिड किया, देयर एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, देयर एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। ठीक है सर। एंड जो भी इन्वेस्टर्स ने बिलो 103 पे बिड किया, their application shall be rejected। तो दिस विल बी द पैटर्न। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस डिस्कवर किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है बुक बिल्डिंग मेथड, एंड आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी स्टूडेंट टू कॉपी दिस एग्जाम्पल। ठीक है, आप ये कॉपी कर लीजिए, मैं स्क्रीन को पॉज कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग सो दैट यू कैन कॉपी। ठीक है, थैंक यू सो मच। कॉपी करिए बेटा। Yes, done with this? Aji sir. So now moving on to the next part. तो वहां पे अपन ने पढ़ा था बच्चों कि अगर कंपनी ने एलिजिबिलिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया, इन केस इफ अ कंपनी फेल्स टू सेटिस्फाई दी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, देन इन सच केसेस क्या होने वाला था, इन ऑल सच केसेस कंपनी is required to make issue through book building process, and under book building process at least 75% of the shares must be allotted to the 75% of the shares must be allotted to the QIBs or qualified institutional buyers, QIBs or qualified institutional buyers। ठीक है सर, हाँ जी। ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो आगे बढ़ने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो समझ लेना चाहिए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया, कंडीशन सेटिस्फाई करके पब्लिक इशू लेकर के आए, कंडीशंस एज स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन नंबर 6 अलॉन्ग विद योर जनरल कंडीशंस, तो जो अलॉटमेंट होगा इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर RII, that also means retail individual investors। ठीक है, retail individual investors। second one is NII, non institutional investors। ठीक है बच्चों, एंड थर्ड वन इज योर QIBs, स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, अब पैटर्न ऑफ अलॉटमेंट देखो क्या रहने वाला है। RIIs को कम से कम 35%, एटलीस्ट 35% ऑफ द इशू साइज, NIIs को कम से कम 15% ऑफ इशू साइज, QIBs को मैक्सिमम है ये
मैक्सिमम 50%। ठीक है सर। सर RII में कौन आता है, कौन होता है सर RII? तो RII में all such investors will be covered, investors who makes an application, individuals होगा इसमें ना, individual investors who makes an application for making an investment, for making an investment up to 2 lakh rupees। ठीक है, फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट अप टू रुपीज 2 लाख। किसमें? RIIs में। NIIs होते बेटा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, who makes applications for more than 2 lakh rupees। ठीक है, तो NIIs को कम से कम अलॉटमेंट कितना, मिनिमम है 15%, यहाँ पे मिनिमम है 35%, और QIBs के केस में इट इज मैक्सिमम 50%। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, RIIs के लिए मिनिमम 35%, NIIs के लिए मिनिमम 15%, एंड फॉर QIBs इट विल बी, for QIBs it will be maximum, for QIBs it will be maximum 50%। QIBs में कौन कौन आता है सर? तो QIBs में आएंगे बड़े इन्वेस्टर्स, इसमें आएगा कोई भी म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, देन कोई भी प्रोविडेंट फंड। ठीक है ना? हाँ सर। देन एनी पेंशन फंड, mutual fund, VCF, PFI, bank, provident fund or pension fund, they all will fall into the category of QIBs, they all will be considered as QIBs। QIBs का definition में later on आपके साथ discuss करूंगा in detail, जब आपके साथ में QIPs discuss करूंगा, qualified institutional placement, there I'll discuss the definition। for the time being आप समझ लो QIBs का मतलब कौन सर? तो QIB का मतलब, QIB will include any venture capital fund, mutual fund, banks, public financial institutions, pension funds, provident funds। is it clear? with a minimum corpus of dash dash dash, डिस्कस करूंगा इन डिटेल। ठीक है सर। हाँ, तो नॉर्मल इशू के केस में दिस विल बी द पैटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अब ऑल्टरनेट प्रोसेस, ऑल्टरनेट इशू में क्या था बच्चों? अगर कंपनी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो इन दैट केस कंपनी को अलॉटमेंट लाना पड़ेगा, सॉरी इशू लाना पड़ेगा थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, है ना? And in that book building process at least 75% of the issue size allot करना है किसको? QIBs को। ठीक है, 75% allotment किसको होगा? एटलीस्ट 75% allotment किसको होगा? QIBs को। Is it clear? हाँ जी सर। चलो अब आगे आ जाओ। तो ये बच्चों खत्म हो जाता है, IPO से रिलेटेड रेगुलेशंस खत्म होता है अभी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये तो एलिजिबिलिटी कंप्लाइंसेस थे, अभी एडिशनल कंप्लाइंसेस हमको पढ़ना बाकी है। एडिशनल कंप्लाइंसेस इस पेंडिंग। ठीक है, हाँ सर आ जाओ। नेक्स्ट कम टू दी FPO। FPO क्या था मैं डिस्कस कर चुका हूँ। FPO में पहले आप पढ़ोगे रेगुलेशन नंबर 102। 102 में क्या बोला? डिस्क्वालिफिकेशन, एंटिटीज विच आर नॉट एलिजिबल, एंटिटीज विच आर नॉट एलिजिबल टू मेक एन FPO। So if the issuer, any of its promoters or promoters group or directors or selling shareholders, in case of selling shareholders किसमें? in case of offer for sale, if they are debarred from accessing the capital market by the SEBI, same point है। then if any of the promoters or directors of the issuer is also a director or promoter of any company which is debarred, same point repeat हो रहा है। then if the issuer or any of its promoters or director is a willful defaulter, पैसा है लेकिन दे नहीं रहे, ठीक है, सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है। देन इफ एनी ऑफ द प्रमोटर्स और डायरेक्टर इज एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इश्यूअर इज अ फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, फ्यूगिटिव ऑफेंडर, सॉरी मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था फ्यूगिटिव ऑफेंडर का। हाँ सर, 100 करोड़ से ऊपर का डेप्ट प्लस लेफ्टी जुरिस्डिक्शन ऑफ कंट्री। तो डिस्क्वालिफिकेशन लगभग सेम है एज इट वाज देयर इन केस ऑफ IPO, एज इट वाज देयर इन केस ऑफ IPO। इज इट क्लियर? अच्छा, ये डिस्क्वालिफिकेशन कब एप्लीकेबल नहीं होगा? in case if the period of debarment is already over। ये नोट आप पढ़ लोगे।
अच्छा, एलिजिबिलिटी तो वो तो था डिस्क्वालिफिकेशन 102 में। क्वालिफिकेशन फॉर एफपीओ, तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था बच्चों कि एफपीओ के केस में जो क्वालिफिकेशन रहेगा, जो एलिजिबिलिटी, जो रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद रहेगा वो कम रहेगा, दैट विल बी लेसर। रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद विल बी लेसर एज कंपेयर टू योर आईपीओ, है ना। देखोगे, एन इशूअर may make an FPO if it has changed its name within last 1 year. If it has changed its name within the last 1 year, then at least 50% of the revenue in the preceding year must come from, at least 50% of the revenue in the preceding year must come from the activities, suggested by new name. तो ये कंडीशन पे देखो तभी एप्लीकेबल होगा जब कंपनी ने लास्ट ईयर नाम चेंज किया है, ड्यू टू द चेंज इन बिजनेस एक्टिविटीज। ये मैं पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। प्लस इफ द इशूअर डज नॉट सेटिस्फाई द अबव मेंशन्ड कंडीशंस, it may make FPO only if the issue is made through book building process and the issuer undertakes to allot कितना, at least 75% of the net offer to the QIP, qualified institutional buyers। आइदर 75% अलॉट करोगे QIBs को, और अगर 75% का अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे हो QIBs को, अगर QIBs को अट्रैक्ट नहीं कर पाए हो तो इन दैट केस आपको रिफंड करना पड़ेगा क्या, सब्सक्रिप्शन मनी। तो सिंपल है। हाँ सर, रेगुलेशन नंबर 102, 103, ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम लोग लगभग सेम पॉइंट डिस्कस करके आ चुके हैं बेटा इन योर आईपीओ, ठीक है, इन केस ऑफ एन आईपीओ। इज इट क्लियर? हाँ सर। नाउ कम टू द जनरल कंडीशंस फॉर एफपीओ, रेगुलेशन नंबर 104। तो 102, 103, 104 डील्स विद द कंडीशंस रिलेटिंग टू एफपीओ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी देखो कंडीशंस रिलेटिवली सेम है। An issuer making an FPO shall ensure that an application is made for listing of the specified securities to one or more of the recognized stock exchanges and choose one of the exchanges as the designated stock exchange। सेम पढ़ा था अपन ने, हाँ सर। Then an agreement is entered into with the depositories for the purpose of dematerialization of shares। Then promoters holding demat form में होना चाहिए। All the existing shares must be made fully paid up। Then arrangement of finance through verifiable means at least or towards 75% of the stated means of finance, excluding the amount raised through public issue or through any existing identifiable internal accruals। फिर maximum 25% तक आप यूज कर सकते हो for general corporate purpose of the total issue proceeds। तो relatively conditions are same for general conditions are also same in case of FPO। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो यहाँ तक आप पढ़ोगे दिस पर्टिकुलर क्लास। लेफ्ट ओवर पोर्शन वी विल बी डिस्कसिंग इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है सर? हाँ जी। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।